Good morning, dear parents and my dear students. I am here again with a new English session. In last session, we have done some exercises of the sentences from your grammar book. Those who have a grammar book, would find to do these exercises a bit easier. But those who don't have, you have to do it in the grammar notebooks. Meanwhile, vice versa, yesterday's session and the exercises we have done in yesterday's session, everybody has to be supposed to be doing it in grammar notebook, because हमारी grammar notebook में book में इतना space given नहीं है that you can solve exercise B and C there only. So आपको उसके लिए grammar notebook use करनी थी. I hope आप सबने grammar notebook में ही किया है. And moreover, that home assignment that was given yesterday, जो मैंने कल आपको assignment दिया था, वो असाइनमेंट मैं अभी इसी सेशन में थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो बेसिकली ग्रामर में क्या होता है, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, जब हमें सेंटेंसेस बेसिकली बोला गया है, सो दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, राइटिंग सेक्शन, सेंटेंसेस एंड यूजिंग सम एडजेक्टिव्स और समथिंग लाइक दैट, तो आपकी चॉइसेस अलग हो सकती है मेरी चॉइसेस से. सो डोंट बी वरीड कि मैम ने ये लिखा और मैंने नहीं लिखा. डो नॉट इरेज इट, जस्ट रीचेक कि आपका सही है या नहीं. So same nahi hai, so you can take help from your parents or your elder sister or brother. Okay. So now focusing on today's session, we'll be doing some more exercises. Exercise B and C was done as an assignment yesterday. So I'll be giving the solution today. So moving on to exercise D, that is on page number 4. I think this is not much clear, but I just want to give a basic idea. This exercise D, I am going to do this exercise with you on the board, and exercise E also I am doing it. I'll be doing it in the laptop because it has something to erase something and to rewrite again. So वो चीज़ हम laptop में करेंगे. I don't want you to focus more on that board when it is filled up already. So वो exercise हम laptop में करेंगे. And now focusing on exercise D on page number 4 of your grammar book. आज हम exercise D कर रहे हैं, page number 4. In this exercise, you have suggested make sentences that begin with these group of words. We have given certain group of words. हमें कुछ phrases दिए हैं, starting phrases. Sentence start कर दिया है, but in between midway में उसको blank कर दिया और हमें उसे अपने अकॉर्ड with our choices of next phrase और our choices of group of word, हमारी choice के word से उसको complete sense देना है. So it is basically बहुत कॉमन से सेंटेंसेस बनेंगे इससे. आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन योर ग्रामर बुक. ये आपको नोटबुक में नहीं करना. आई एम राइटिंग हियर बुक. आई एम मेकिंग एवरीथिंग मच क्लियर कि आपको बुक में करना है या नोटबुक में. सो प्लीज गो थ्रू द वीडियोज, क्योंकि आप सिर्फ अगर स्टार्टिंग वीडियो देखेंगे 2-3 मिनट्स और लास्ट की 2-3 मिनट्स, आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है. सो गो थ्रू द वीडियोज थॉरली, एंड दिस एक्सरसाइज यू आर सपोज टू डू इन बुक. कल वाली हमें नोटबुक में करनी थी क्योंकि बुक में स्पेस नहीं था. ओके. सो फर्स्ट फ्रेज जो हमें दिया है, दैट इज माई स्कूल इज, एंड देन इट इज अ बिग ब्लैंक देयर. माई स्कूल इज, हमें इनिशियल फ्रेज उन्होंने दे दिया है, माई स्कूल इज. सो नाउ यू हैव योर चॉइस. आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट मेक सेंस. कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जंबल वर्ड और समथिंग लाइक दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल. बट आपको स्कूल के लिए, माई स्कूल, मेरे स्कूल के लिए, मेरा स्कूल है, क्या है वो आपको फिल करना है. आई एम फिलिंग माई चॉइसेस. आप जरूरी नहीं आपको सेम ही कॉपी करना है. ओके, यू कैन अमेंड इट एनी हाउ. सो माई स्कूल इज, आई एम राइटिंग वेरी बिग, यस, एंड ब्यूटिफुल. सो आप यहाँ वेरी बिग पे भी एंड कर सकते थे. फुल स्टॉप इज गिवन देयर एट द एंड. फुल स्टॉप वहाँ दिए हैं, सो डोंट पुट इट अगेन इन बिटवीन. तो यू शुड हैव एंडेड इट हियर. आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, वेरी बिग, बट आई हैव extended it up to beautiful also. My school is very big and beautiful. You can use another adjectives if you want. Okay. My school is very big and beautiful. That makes complete sense. Now it is a sentence. हमें सिर्फ एक phrase दिया था. We have added something. हमने अपनी तरफ से group of words add किए हैं, and then it becomes a sentence. Our home is. Next phrase is our home is, हमारा घर.
हमारा घर कैसा है, हम ब्यूटीफुल बिग पहले यूज़ कर चुके हैं, तो ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड, सेम सेम हम कॉपी नहीं करेंगे. सो आई हैव रिटन हियर आर होम इज. बेसिकली जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वी आर यूज टू वी आर सपोज टू यूज एडजेक्टिव्स. You can use my home. Our home is quite big or big enough. So I have chosen the word our home is very spacious. Spacious means जिसमें काफ़ी मतलब अच्छी जगह है, even move around, बड़ा है, खुला है. Our home is very spacious. So you can use the adjectives of your choice. क्या और कुछ भी लिख सकते हो. Our home is where we live together. Our home is near the lake or our home is situated in that portion of the city. So whatever, इसमें आप एड्रेस और लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं. I have kept it simple ताकि आपको इनिशियली थोड़ा इजी लगे. Then the third is holidays are. Now this is related to what it happens in this month basically. जब हम रूटीन में थे, so May month में in between mid May में हमारी वेकेशन स्टार्ट हो जानी होती है. So holidays are. इसके साथ मुझे याद आ रहा है कि अगर मुझे ये बोला कितना अच्छा लगेगा. हॉलीडेज, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. सो दैट इज द सेंटेंस आई हैव रिटन हियर. हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन सून. कि जल्दी ही छुट्टियां शुरू हो जाएंगी. हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन. बिगिन मीन्स शुरुआत होना. सून जल्द ही हो जाएंगी. आई होप सो यू ऑल विल बी एंजॉयिंग समर ब्रेक. सो वी वेंट टू, हम गए थे. So you can write any place you want to write. We went to our uncle's house, or we went to the what you call amusement park. We went to the mall. We went to the zoo. I have written we went to the zoo. इतना भी काफी है, but I have extended somehow. आप भी कुछ extensions कर सकते हैं. I went to the zoo last Sunday. When I am writing last with some टाइम बीइंग, कुछ चीज़ों के साथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट फ्राइडे और वट एवर डे. सो लास्ट मीन्स पिछला जो भी होगा. लास्ट मंडे मतलब पिछला मंडे जो भी था. आई नॉट गोइंग टू मेंशन कि लास्ट मंडे डेट भी लिखेंगे. नो, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, जो भी पिछला मंथ था जो बीत चुका है, वो प्रॉपर चीज़ के लिए हम लास्ट लिखते हैं. देन आई हैव अ सेंटेंस आई लाइक टू. दिस इज वेरी बेसिक वन. इसमें आप अपनी चॉइसेस से कुछ भी लिख सकते हैं. आई लाइक टू प्ले गिटार, आई लाइक टू प्ले पियानो, आई लाइक टू प्ले आउटसाइड. सो आई एम लीविंग इट ब्लैंक. शुड आई एम राइटिंग सम सिंपल फ्रेज हियर. आई लाइक टू प्ले पियानो, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू ड्रॉ, आई लाइक टू डांस. सो वट एवर, चेंज इट प्लीज कॉपी एग्जैक्ट मत करो. आई वॉन्ट यू टू बी योरसेल्फ. आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट it should make a sense. Then my friends are. My friends are. My friends are very good. My friends are always helping me. My friends are whatever आप अपने friends के बारे में लिखना चाहें, लेकिन मैं लिखना चाह रही हूँ थोड़ा different. मेरे दोस्त मुझे मिलने आ रहे हैं आज. So how do I say this? My friends are visiting. जब हम किसी से मिलने जाते हैं, इट्स अ विजिट. कहीं जाते हैं, कहीं पर विजिट करना. सो माई फ्रेंड्स आर विजिटिंग मी टुडे. कि वो मुझसे मिलने आज आ रहे हैं. दिस सेंटेंस मेक्स दिस सेंस. माई फ्रेंड्स आर विजिटिंग मी टुडे. और आप ये भी लिख सकते हो, माई फ्रेंड्स आर विजिटिंग सम लाइक माई फ्रेंड्स आर विजिटिंग छोड़ देते हैं, लेट इट बी सम अदर थिंग. माई फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग मी टुडे. ओके, फॉर द मूवी. ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरे साथ आ रहे हैं मूवी के लिए. माई फ्रेंड्स, ऐसा हो नहीं रहा है बेसिकली आजकल, सो लेट इट बी सिंपलर वन. ठीक है. डू नॉट, ओ माई गॉड, डू नॉट. इतनी सारी बातें टीचर्स बोलते हैं. डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दिस, डू नॉट थ्रो इट हियर, डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड विद वट एवर, डू नॉट राइट हियर इन द नोटबुक. डू नॉट वाले इतने सेंटेंसेज हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो. डू नॉट टॉक, डू नॉट चीट, डू नॉट स्टैंड अप हियर, डू नॉट रन, डू नॉट हिट समबडी. whatever do not. इतने सारे do not आपको बोले जाते हैं कि आप भूल जाते हैं what to do, कि do वाला क्या है फिर. so this is blank. आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे. I am leaving it blank. आपको भी तो कुछ करना है. Diwali is. So there is a generous choice.
Diwali is the festival of lights. Diwali is my favorite festival. Diwali is a festival that comes and that is celebrated with by decorating our houses. Diwali is celebrated every year, most common, and yes, true. So Diwali is whatever you want to write. मैंने बोला था हम करेंगे, so हम करेंगे ना. I have done something for you. You should complete some blank spaces out there. My mother. ये मैं नहीं लिख सकती, सॉरी. मतलब मैं अपनी मम्मा के लिए लिखूंगी, so that's my. Okay, I'll write it. My mother is very kind, very kind, actually very kind. My mother is a very kind lady. So I'm writing this. और आप अपनी मम्मा के लिए जो फील करते हैं और जो वो करती हैं, फील करना इज नॉट मतलब जरूरी नहीं वही लिखो. माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, हाउस मेकर, माई मदर इज अ so many professions are there, so you can write anything. Okay, so I'll be rubbing this, this will help us out, and 10 sentence I'll be writing here. Okay, don't be confused. और ये easy है, आप भी अपने आप fill कर सकते हो. Next is eating mangoes. I'll give you a hint for this. Eating mangoes, like especially in summers, obviously mangoes का सीजन समर ही होता है. सो ईटिंग मैंगोज, इसके लिए एक ही चीज दिमाग में आती है. ईटिंग मैंगोज इज अ डिलाइट इन समर्स. इज अ डिलाइट ऑल्सो यू कैन राइट. इतना भी काफी है. और यू शुड राइट द सीजन, तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा. फुल स्टॉप. ईटिंग मैंगोज इज अ डिलाइट इन समर. डिलाइट मतलब हद से ज्यादा खुशी वाली चीज, यानी कि इट गिव्स ग्रेट प्लेजर, इमेंस प्लेजर, जिसमें बहुत खुशी मिलती है. ऑब्वियसली गर्मियों में ठंडे ठंडे मैंगोज खाने में जो खुशी है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट. तो ईटिंग मैंगोज इज अ डिलाइट इन समर्स. सो वी आर डन विद एक्सरसाइज डी, एंड ई एक्सरसाइज आई विल बी डूइंग इट नाउ इन द लैपटॉप, एंड प्लीज वॉच इट केयरफुली. देन वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर द सेंटेंसेस. और जो होमवर्क आपको दिया था वो भी मैं टेली करवाने वाली हूँ. सो वेट एंड वॉच. ओके, गोइंग टू द लैपटॉप. So here, as you can see on my screen, is your E exercise on page number 4. D we have already done with, and I hope this is same as in the book. Yesterday we in this exercise, basically what you are going to do is you have to replace these colored phrases जो red में लिखा है, मैंने टाइप किया है, वो आपको रिप्लेस करके अपनी चॉइस का कोई फ्रेज ऐड करना है टू मेक इट अनदर सेंसिबल सेंटेंस. अभी भी सेंसिबल ही है, हम कुछ और बनाना चाहते हैं, सो वी हैव टू रिप्लेस दिस. ओके, सो आई विल बी डूइंग इट फॉर यू. आप अपने ये आपको आप बुक में भी कर सकते हैं. जस्ट पुट अ लाइन, इट इज़ कलर्ड ऑलरेडी, तो आप उस कलर्ड वाले के ऊपर या नीचे वेर एवर यू फील कंफर्टेबल आप लिख सकते हैं. सो इन दिस फर्स्ट वन, येस्टरडे वी मेड अ व्हाट. येस्टरडे वी मेड अ लवली सैंड कासल. कल हमने बहुत सुंदर सा सैंड कासल बनाया. सो इफ़ आई वॉन्ट टू एडिट दिस, हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं. येस्टरडे वी मेड अ चॉकलेट केक. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज, लेट इट बी वेरी सिंपल. ज़रूरी नहीं आपको हैवी वर्ड्स ढूंढने हैं कि हाँ मेरा सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव लगे. जब आपको चॉइसेस दी जाए ना कि आप अपनी चॉइसेस, सो चूज द सिंपलेस्ट वन सो दैट द एरर प्रोबेबिलिटी इज लेसर. येस्टरडे वी मेड अ चॉकलेट केक. ओके, फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर माई ब्रदर, वो आप एक्सटेंशंस, दिस इज योर चॉइस कम्प्लीटली. अ डिटेक्टिव स्टोरी इज बीइंग रेड बाय सना. सो इन दिस आई विल ओनली एडिट दिस. अगर सिंपल है सो आई विल राइट दिस हॉरर स्टोरी और अ कॉमिक स्टोरी, है ना. अ कॉमिक स्टोरी इज बीइंग रेड बाय सना. सो आई विल बी लाइक दिस. इसको हम अभी ब्लैक कर देते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस यही है. ठीक है, अ हॉरर स्टोरी इज बीइंग रेड बाय सना. सिर्फ हमने उसमें कुछ चेंजेस किए और वो बन गया नया सेंटेंस. इट शुड बी सम न्यू सेंटेंस, है ना. सो इट कैन ऑल्सो बी अ हॉरर स्टोरी की जगह अगर आप पूरा फ्रेज चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन राइट न्यूज़ पेपर इज बीइंग रेड बाय सना.
सो स्टोरी भी हटा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. थर्ड वन, अंकिताज मदर इज़ अ स्कूल टीचर. सो इफ़ आई एडिड दिस, अंकिता की मम्मा एक स्कूल टीचर हैं, तो आप इसमें प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हो कि वो एक डॉक्टर हैं या वो एक रिपोर्टर हैं, नर्स हैं, वट एवर. अगर प्रोफेशन वाला नहीं लिखना चाहते, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड सम एडजेक्टिव, जैसे हमने डी एक्सरसाइज में किया. मैंने लिखा माई मदर इज़ अ वेरी काइंड लेडी. सो यू कैन राइट अंकिताज मदर इज़ अ, just a minute, is a very kind lady. ठीक है ना. मैंने सेम इसे रखा बिकॉज आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ करते हैं, देन इट वुड बी कम्प्लीटली फाइन. अंकिताज मदर इज़ अ वेरी काइंड लेडी. आप इसमें प्रोफेशन तो एज यूजुअल, जब टीचर लिखा है तो उसकी जगह आप प्रोफेशन चेंज करके लिख सकते हैं. द मैन विद द बियर्ड इज़ माई फादर. मतलब जो वहाँ बियर्ड मीन्स जो स्टबन दैट इज़ ऑन द चिन एंड हाफ ऑफ द चीक्स, जिसे आप दाढ़ी बोलते हैं. सो बियर्ड इज़ जो वहाँ पे आदमी है विद अ बियर्ड, वो मेरे पापा हैं. सो आप इसकी जगह कोई और रिजेम्बलेंस भी दे सकते हैं. द मैन, मैं कहूँगी द मैन स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़े हैं आदमी, वो मेरे पापा हैं. द मैन, जस्ट अ मिनट, द मैन स्टैंडिंग देयर the man standing there is my father. Or you can also write the man with a stick is my father, the man there with a briefcase is my father. So कुछ भी आप resemblance दे सकते हैं. Fifth one is the birds are twittering in the garden. The birds are twittering in the garden. The birds are twittering, I would write, I'll not change the color now, you get to know. Near the lake, near the pond, near the what, near the tree or whatever. The birds are twittering near the lake. So I have written this. ठीक है, चेंज कर दिया है मैंने. सो आप अगर मैं रेड में भी रखूँ, यू मस्ट नो कि हाँ मैंने ये चेंजेस किए हैं. सो यू कैन मैच एंड राइट देन. ओके, आई विल बी चेंजिंग इट नियर द लेक. सो दिस इज डन. नेक्स्ट इज राजीव वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच. अब वो क्या देखने गया है? क्रिकेट मैच. अब वॉच तक तो सेम है, यानी कि कुछ देखने ही गया है, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते. वी विल बी राइटिंग राजीव वेंट टू वॉच द मूवी. उसके साथ आप लिख सकते हो विद हिज फ्रेंड्स और फैमिली, वट एवर यू फील. ओके, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. सो वॉच वाला हम चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने ये चेंज किया है. हमने सब्जेक्ट मतलब उसका पर्पज़ ही चेंज कर दिया कि वो क्या देखने जा रहा है. तानिया कुक्ड लंच फॉर हर फ्रेंड्स. सो इसको बहुत सिंपल रखूँगी मैं. तानिया कुक्ड लंच फॉर हर फ्रेंड्स. उसने अपने दोस्तों के लिए कुक किया, कुछ भी मतलब लंच बनाया. सो लेट इट बी मी. तानिया कुक्ड लंच फॉर मी. सो आपको सिर्फ उस रेड जो फ्रेज़ है उसको चेंज करना है. इसका ज़रूरी नहीं है कि जितने वर्ड्स उसमें उतने ही होने चाहिए, या जैसा वो उसका फीलिंग और व्हाट इट इज़ शोइंग वही होना चाहिए. लेट इट बी एनीथिंग, बस वो जब बन जाए पूरा सेंटेंस उसकी सेंस होनी चाहिए. तान्या कुक्ड लंच फॉर मी, दैट्स इट. देन द स्कूल चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग द रोड. नाउ आई विल राइट द स्कूल चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग द ब्रिज. सो बिकॉज इट हैज़ अ लिमिट एक्चुअली, इसमें थोड़ा लिमिटेशन हो जाएगा. क्रॉसिंग वॉट, क्या क्रॉस कर सकते हैं, इधर रोड और ब्रिज और रिवर. सो वाई स्कूल चिल्ड्रन, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिखेंगे हम, है ना. देन तनु प्लेज विद हर पेट डॉग इन द इवनिंग. शाम को खेलती है. आई विल राइट तनु प्लेज विद हर पेट डॉग एवरी डे. और तनु प्लेज विद हर पेट डॉग when she is free, when she is out in the playground, when she is happy, whatever conditions. So I'll write every day only. तो आप अपने choices लिखिए. I am telling you again and again कि please be very very flexible. आप कुछ भी change करें, it's your choice. बस उसको एक बार नहीं, you have to recheck it twice thrice कि वो ठीक लिखा है आपने. And get it assured by, you can take help from your teacher like me. You can just send it to me or you can ask something if you want. The blue sweater was made by my grandmother. वो जो blue sweater है वो मेरी दादी माँ ने बनाया है. So what else she can make?
was made by my grandmother. The blue sweater. उसके अलावा और दादी माँ क्या बना सकते हैं? what? स्वेटर के अलावा आप क्या लिख सकते हैं? जस्ट गेस कि दादी माँ और आपके बनाया था. This what? This shirt was made by my grandmother, or this sweater हो गया है. So this cap was made by woolen cap, you can write. Or this photo frame was made by my grandmother, because दादी माँ उनके एज में बहुत पेंटिंग और कार्विंग वाली चीज़ें होती थी. They had such hobbies. This pot was made by my grandmother. So I'll write this pot was made by my grandmother. उसकी जगह आप जो भी पॉसिबल और जो भी अच्छा लगे, मतलब अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए ना. दिस एरोप्लेन वॉज मेड बाय माई ग्रैंड मदर. इट डजेंट लुक लाइक फिजिबल, रेदर इट कैन बी, बट चूज द अप्रोप्रिएट वंस. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन. ये हमने कर दिया है चेंज. एंड नाउ फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन ऑफ the home assignment I have given you is there here. So solution of exercise B, jumble words थे जो आपके पास. I'll focus on it. Tennis balls are made of rubber. The soldiers attack the enemies. Bread is baked in an oven. You must always speak the truth. Harsh is a hard-working and a disciplined boy. It is very cold in Srinagar during winters. Eat it when the meal is hot. Mayank walks 5 miles every morning. Always wash your hands with soap and water before meal. The Taj Mahal is one of the most beautiful buildings in India. I hope सबने सही किए हैं. Now exercise C. I have done 3 for you yesterday. 3 हमने किए थे कल. That I have written here. और बाकी आपको करने थे phrases add करके. I cooked for 3 hours. She is dancing on the floor. The cat is behind the cupboard. Your pencil is in my pocket. We were standing near the stairs. Salim fell near the playground. I met him at the mall last Monday. The little boy fell into the pool. The army is marching towards east. Please eat your food with a spoon. So I have written my choices. आपकी बहुत अलग हो सकती हैं, because it is hardly possible कि हाँ मेरी और आपकी choice match करे. बहुत मुश्किल है. Lesser probable. So least probable it is. So focus on this, and if you have not done this, you can write now, and if you have done तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि शायद मेरा इधर कुछ गलती होगा. So that is what I have done for you. Okay, so this is the end of the session. Homework done, discussed, and exercise is done. So we have ended with the sentences chapter. Thursday ko we'll be revising it again with some worksheets. So bye bye from my side.